ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ صدر بائیڈن اور صدر پوٹن کی پہلی براہ راست ملاقات۔ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے جب دونوں رہنما اس بات سے متفق ہیں کہ باہمی تعلقات انتہائی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ جو بائیڈن G7 نیٹو اور یورپین یونین سربراہی کانفرنسوں میں شرکت کے بعد سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا پہنچے ہیں، جہاں وہ امریکی صدر کی حیثیت سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ پہلی مرتبہ بالواسطہ بات چیت کریں گے۔ یہ ملاقات گزشتہ 4 مہینوں کے دوران دونوں رہنماؤں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کے بعد ہو رہی ہے۔ البتہ دونوں ملک تعلقات کو زیادہ مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔ صدر بائیڈن روسی سائبر ہیکروں کے ذریعے امریکی مفادات کے خلاف سائبر حملوں کے لیے پوٹن کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ انہوں نے روسی اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالنے پر اسے جمہوریت کی توہین قرار دیا تھا، جبکہ امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ روسی صدر پوٹن تاہم ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے 4 تا 5 گھنٹے تک بات چیت ہونے کی امید ہے۔ حکام کے مطابق بائیڈن اور پوٹن ابتدا میں اکیلے میں بات کریں گے۔ ان کے ساتھ صرف مترجمین اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف موجود ہوں گے۔ بعد میں دونوں صدور کے ساتھ 5 عہدیدار شامل ہو جائیں گے اور تفصیلی بات چیت ہوگی جو 4 سے 5 گھنٹے تک چلے گی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان خراب تعلقات کم از کم مستقبل قریب میں ختم نہیں ہونے والے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ تعاون کے کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں پیش قدمی کی جا سکتی ہے اور اختلافات برقرار رہنے کے باوجود انہیں قابو میں رکھا جا سکتا ہے اور خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہیرے اگلتا میدان۔ جنوبی افریقہ کے ایک گاؤں میں سینکڑوں لوگ کھدائی میں مصروف۔ جنوبی افریقہ کے صوبے کوازولو-نٹال کے شہر ڈربن کے شمال میں تقریباً 250 کلومیٹر میں ہیرے کی تلاش میں یہ رش ایک ہفتہ قبل ایک حادثاتی دریافت کے بعد شروع ہوا۔ صوبائی حکومت نے انتباہ کیا ہے کہ یہ کھدائی غیر قانونی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ غربت سے نکلنے کے لیے زندگی میں صرف ایک بار ملنے والا موقع ہے۔ ایک چرواہے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے کسی کھلے میدان میں ان پتھروں کا انکشاف کیا اور پڑوس کے قصبوں اور دیہات سے سینکڑوں لوگوں کو اس خزانے کی جگہ پر جانے پر مائل کیا۔ ان پتھروں کی تلاش میں آنے والوں میں زیادہ تر بے روزگار خواتین شامل ہیں۔ اس وادی میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس کلہاڑیاں اور بیلچے ہیں اور وہ ہیرے کی تلاش میں کھدائی کر رہے ہیں۔ بہت سی خواتین نے یہاں کھدائی کرتے ہوئے رات بھی گزاری ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اس سے جرائم ختم ہو جائیں گے، خاص طور پر خواتین کے خلاف جرائم، کیونکہ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ایسی چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ان کے گھروں میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ وہ بہت جدوجہد کر رہے ہیں تو امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جنوبی افریقہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں بے روزگاری کی شرح 33% ہے اور 15 سے 34 برس کی عمر کے لوگوں میں یہ شرح 46% ہو گئی ہے۔ کھدائی کرنے والوں میں اکثریت ان کی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک خدائی تحفہ ہے۔ ہیروں کے بارے میں کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا مہیا کر رہا ہے، یہ زمین ہمارے لیے مہیا کر رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ سامنے آئے گا۔ حکومت نے لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہا ہے، کیونکہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو افراتفری اور ممکنہ بھگدڑ مچ سکتی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ محکمہ معدنیات اور توانائی کے ماہرین پتھروں کی حیثیت کے تعین کے
के लिए उनका तजिया करेंगे। जनूबी अफ्रीका दुनिया भर में हीरो का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है और हीरो की तलाश में आने वाले लोग शायद इसी वजह से पुरुउम्मीद हैं। 1905 में यहाँ से ही दुनिया का सबसे बड़ा खुरदरा क्वालिटी का क्लीनन हीरा मिला था। उनका ख्याल है कि ये हालिया दरियाफ्त शुदा पत्थर क्वार्ट्स हो सकता है, जो एक बहुत ही कम कीमती क्रिस्टल है और हीरे की तरह दिखाई देता है। हीरे तलाश करना इंतहाई नायाब है। कानकनी की कंपनियां इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। मुसलमान वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और उत्तराखंड के साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मुस्लिम माशरा कोविड वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बारे में मुसलमानों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने से खौफजदा हैं। त्रिवेंद्र ने कहा, मैं मुसलमानों का नाम लेकर ये कह रहा हूँ कि वो अब भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उनमें अब भी हिचकिचाहट, खदशात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमारे मुस्लिम माशरे के भाइयों को वैक्सीन के बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस मामले में अपना काम कर रही है। इस तरह के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए समाजी तंजीमों और मीडिया को भी फाल किरदार अदा करने की जरूरत है। कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन जरूरी है। इससे कुव्वते मदाफत में इजाफा होता है, जो कोरोना के खिलाफ जंग में जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग जिनको वैक्सीनेशन से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात हैं, वो आगे और सवालात पूछें ताकि उनके शुबहात आसानी से दूर हो जाएं। खबर नामे जुनूबी हिंद मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। आलमी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना पुरकशिश मंजिल। हिंदुस्तान और सऊदी अरब सिफारत खानों के जेर एहतमाम तेलंगाना इन्वेस्टमेंट मीट से KTR और औसाफ सईद का खिताब। वजीर IT व सनत KTR ने कहा कि आलमी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना पुरकशिश मंजिल है। बेहतरीन सनती पॉलिसी के तवस्सुत से तकरीबन $22 बिलियन की सरमायाकारी हासिल की गई है और 15 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। KTR ने हिंद सऊदी सिफारत खानों के जेर एहतमाम तेलंगाना इन्वेस्टमेंट मीट में खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना अपनी उम्दा सनती और सरमायाकारी पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 7 साल से दुनिया के कई मुमालिक और शोहरत याफ्ता कंपनियों और कारपोरेट इदारों को तेलंगाना में सरमायाकारी की तरगीब देने में कामयाब रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर TSI पास पॉलिसी की सताइश की जा रही है। इस पॉलिसी से जहां तेलंगाना में $22 बिलियन की सरमायाकारी हुई, वहीं 1.5 मिलियन रास्त मुलाजिमतें भी फराहम की गई हैं। हुकूमत तेलंगाना मुख्तलिफ शोबों जैसे IT, फार्मा, लाइफ साइंस, एरोस्पेस, दिफा, काबिल तजदीद तवानाई और फूड प्रोसेसिंग में सरमायाकारी रागिब करने कोशा है। इनमें सरमायाकारी के लिए सऊदी कंपनियां दिलचस्पी दिखाती हैं तो हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सफीर हिंद बराए सऊदी अरब औसाफ सईद ने कहा कि अगरचे तेलंगाना नई रियासत है, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से सनती शोबे में बेहतर पेशरफ्त कर रही है। तेलंगाना की सनती तरक्की नाकाबिले फरामोश है और तेलंगाना की सनती तरक्की को मुल्क भर में सरे फहरिस्त मुकाम हासिल है। वो सऊदी कंपनियों और तेलंगाना के दरमियान बेहतर तिजारती और सरमायाकारी मौके फराहम करने KTR की दरखास्त पर एक पुल जैसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भारी सरमायाकारी सऊदी से तेलंगाना पहुंचने की उम्मीद है। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदर नशीन अब्दुल अजीज अल खत्तानी, सऊदी हुकूमत के नुमाइंदे मोहम्मद अल हसना, चीफ सेक्रेटरी सनत तेलंगाना जयेश रंजन, नीति आयोग के इंटरनेशनल सेक्रेटरी राकेश सरवाल के अलावा दूसरों ने शिरकत की।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ। हज 2021 के लिए 4,50,000 अफराद ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक इजाजत नामे के लिए रजिस्टर करवाने की साइट के खुलने के 24 घंटों में इतनी बड़ी तादाद ने अपने नाम रजिस्टर करवाए। बताया गया कि दरखास्त गुजारों में 60% मर्द और 40% खवातीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने इस साल सिर्फ 60,000 अफराद को हज इजाजत नामे जारी करने का ऐलान किया है। नायब वजीर हज व उम्रा अब्दुल फतेह मशात ने कहा कि हज दरखास्त गुजारों की तकसीम के दौरान सऊदी और गैर सऊदी के दरमियान कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी। हज के नए नाम रजिस्टर करवाने के लिए साइट भी सबके लिए खुली है। दरखास्त गुजारों में पहली मर्तबा हज करने वालों और पिछले 5 साल में जिन्होंने हज नहीं किया है उनको तरजीह दी जाएगी। बताया गया है कि जिन आज़मीन को इस साल हज की इजाज़त मिलेगी उनका इजाज़त नामा उनके अबशर अकाउंट पर जारी किया जाएगा। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में शफीक आबदी को समात फरमाइएगा। एक नज़्म समात फरमाए। तेजाब का समंदर, एक ला इलाज मरीज की सदा। अर्ज किया है, ये सोचता हूं हर एक लम्हा ये सोचता हूं कि ख्वाहिशों के जो आग दिल में लगी हुई थी उसे बुझाने, कि ख्वाहिशों की जो आग दिल में लगी हुई थी उसे बुझाने कहां कहां से गुजर गया हूं कहां से, कि ख्वाहिशों की जो आग दिल में लगी हुई थी उसे बुझाने कहां कहां से गुजर गया हूं कहां से। अजब फिजाएं, अजब घटाएं, अजीब राहें, अजब हवाएं, था बीच में एक हसी समंदर। कहां से गुजर गया हूं कहां से। अजब फिजाएं, अजब घटाएं, अजीब राहें, अजब हवाएं, था बीच में एक हसी समंदर। लगी हुई थी जो आग दिल में उसे बुझाने, छलांग ऐसी लगाई के बस। था बीच में एक हसी समंदर, लगी हुई थी जो आग दिल में उसे बुझाने, छलांग ऐसी लगाई के बस। ये सोचता हूं हर एक लम्हा कि तेजाब के समंदर में हूं नहाया। ये सोचता हूं हर एक लम्हा कि तेजाब के समंदर में हूं नहाया। खुद अपने हाथों से हूं जलाया बदन को अपने, खुद अपने हाथों से हूं जलाया बदन को अपने। मेरी हर एक सांस में है आतिश, जला के रख देगी आप सबको, सबक लो मुझसे। मेरी हर एक सांस में है आतिश, जला के रख देगी आप सबको, सबक लो मुझसे। वगरना दुनिया में भी जलोगे दोज़ख की आग में भी, वगरना दुनिया में भी जलोगे दोज़ख के आग में भी। ये सोचता हूं हर एक लम्हा ये सोचता हूं हर एक लम्हा ये सोचता हूं।